Hello students. So today we are going to discuss about the first chapter of your chemistry syllabus, that is chemical reactions and equations. अच्छा, सबसे पहले in this chapter what all things we need to understand. So let's start with the very basic thing कि यार एक chemical reaction क्या होता है. So if you ask what is a chemical reaction? Chemical reaction is nothing but a process. एक process होता है जिसमें atoms या group of atoms they would rearrange themselves to form a new product. Okay, तो होता क्या है, chemical reaction is a process in which atoms or group of atoms will rearrange to form a new product. अच्छा, अब ना क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल रिएक्शंस हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है या एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. सो व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टर्स और व्हाट आर द बेसिक ऑब्जर्वेबल चेंजेस, आई वुड से जो चेंजेस हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, व्हाट आर दोस चेंजेस जो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस माइट बी द मास ऑफ द रिएक्टेंट will always be equal to mass of product. That's the first thing जो हमें याद रखना है. प्लीज ध्यान रखना बच्चों कि फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन तुम्हारा जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा will always be equal to the mass of product. अच्छा, ऐसे क्यों होगा? बिकॉज आपको you need to follow or you need to obey the law of conservation of mass. Okay, see हमने पढ़ा था ना कि mass can never be created, never be destroyed. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको mass conserve करना पड़ेगा. So therefore for observing or obeying the law of conservation of mass, हम लोग क्या बोलेंगे? That in a chemical reaction the mass of reactant will always be equal to the mass of product. ठीक है? Further, the second is the change in color. आप देख सकते हो कि okay, there might be certain changes in color. एक white substance है जो blue color में change हो रहा है, या एक blue substance है जो white में change हो रहा है. कुछ तो color change होगा. Okay. Next, there might be a change in state of matter. मतलब आपने start किया था एक solid substance से, but then you landed up with a gaseous substance or with a gaseous or with a liquid substance. Okay, एक example देखते हैं इसका. Let's suppose अगर आपने start किया with CaCO3, that is calcium carbonate. इसको आपने heat किया. अच्छा, calcium carbonate जो आपका था वो था solid, है ना? The solid calcium carbonate upon heating gave you CaO, जो कि also एक solid. This is also solid, but this time it also gives you CO2, and CO2 हमें पता है कि वो gaseous compound होता है. So over here what has happened? आपका change in matter हुआ या change in state of matter हुआ. पहले solid था, अब gaseous बन गया. So even this might happen. अच्छा, fourth character क्या है? The fourth character might be there might be a change in the nature of the reaction mixture. मतलब हो सकता है कि आपका reaction mixture पहले acidic था, अब basic बन गया, या पहले बेसिक था अब एसिडिक बन गया. तो देयर माइट बी अ चेंज इन द नेचर और द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल ऑब्जर्व इज द चेंज इन द हीट कंटेंट. होता है कि देयर माइट बी सम रिएक्शंस जो हीट अब्सॉर्ब कर ले, व्हिच विल बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. देयर माइट बी सम रिएक्शंस जो कि हीट लिबरेट कर ले, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन भी ऑब्जर्व किया जा सकता है. And the last thing what you will observe is formation of bubbles. Obviously अगर कोई गैस लिबरेट हो रहा है तो यार बबल्स तो आएंगे ही ना. मान लो अगर आपने जिंक लिया, जिंक मेटल, you treated it with HCl, it will give you H2, है ना? So H2 will be a gas, and obviously gas जब escape होगा it will give you formation of bubbles. So these are all the observable changes जो कि आप observe कर पाओगे during a chemical reaction. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि what are the steps for writing the chemical reaction. एक chemical reaction लिखने के पीछे steps क्या होता है? So the very first step is you need to use symbols of elements or compounds. Okay, आप इमेजिन कर लो, लेट्स सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. एक बेसिक रिएक्शन है. ओके, तो अगर आप हर बार ये लिखते जाओगे कि हाँ ठीक है यार, कार्बन प्लस ऑक्सीजन and this is going to give you carbon dioxide, तो this will be a very tiresome process. हर बार थोड़ी ना लिख सकते हैं, हर पूरे कंपाउंड का नाम हर बार लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इट विल बी अ वेरी लेबोरियस प्रोसेस. तो हम लोग क्या करते हैं, द सेम रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन हम लोग लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर सिंबल्स और प्रॉपर फॉर्मूला. सो C plus O2 gives you CO2. अच्छा, अब देखो
इतना लिखने से अच्छा ये छोटे फॉर्मेट में लिख दिया. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यू नीड टू यूज सिंबल्स और एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड्स और द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होता है? द सेकंड स्टेप इज दैट द रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड पे होंगे. नेक्स्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड यूजिंग एन एरो. ये तो हमें पता ही है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में हमेशा एक एरो होगा. ओके. अच्छा, जस्ट एक चीज का ध्यान रखना, इतना इसके ऊपर सवाल आने का चांसेस बहुत कम है, बट यस, वी नीड टू रिमेंबर दिस, दैट इफ यू यूज अ नॉर्मल एरो, then this implies that the reaction is irreversible. मतलब your reactants will convert to product and the reaction will stop. Okay, but अगर हम लोग ने ऐसे एरोस ड्रॉ कर लिए, मतलब हाफ हेडेड एरोस, वन गोइंग in the front, one coming in the back, this means that the reaction is reversible. Okay, now what do you understand by this? इसका मीनिंग ये है कि the reactants can be converted to products. Similarly, even the products can convert back into the reactants. तो ये हमें बस याद रखना है, इसके ऊपर ज्यादा सवाल आने के चांसेस बहुत कम है. Okay, further, the fourth point, if more than one reactant or more than one product are present, तो obviously एक प्लस साइन दिखाया जाएगा. जैसे पहला वाला एग्जाम्पल ही देख लो, आपने दो रिएक्टेंट्स लिए थे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो आपने दोनों के बीच में एक प्लस साइन डाला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट, if you have gaseous reactants or products, they are written with an upward arrow. अच्छा, यहीं पे बच्चों एक और पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, if you are getting any precipitation, then it will be denoted by a downward arrow. इसको याद रखना. अगर गैसियस प्रोडक्ट्स या गैसियस रिएक्टेंट्स है तो अपवर्ड एरो, अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये सॉलिड कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो आप डाउनवर्ड एरो से उसको रिप्रेजेंट करोगे. एक और चीज अंडरस्टैंड करना, सी, डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट्स कि वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हुआ है, मतलब दैट सब्सटेंस नीड्स टू बी इनसॉल्युबल. ओके, प्लीज रिमेंबर, only insoluble compounds or insoluble substances, only insoluble substances precipitates. Okay, सारे substances precipitate नहीं होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं NaCl is a solid, but NaCl is soluble in water, तो he will never get precipitated, तो उसके लिए डाउनवर्ड एरो नहीं आएगा. ठीक है. The next, the physical states of the reactants or the products needs to be mentioned within the bracket, and ये subscripted होंगे. मतलब क्या, देखते हैं. सर, अगर मेरा कंपाउंड या अगर मेरा सब्सटेंस सॉलिड है तो I'll write down S, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G, एक्वियस के लिए AQ. Now what do you mean by aqueous? Aqueous का मीनिंग यहाँ पे is simply dissolved in water. मीनिंग, एक एग्जाम्पल देख लो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल. अगर मैं बोलूं मेरे पास NaCl है, NaCl इज कॉमन सॉल्ट, सॉलिड होता है. ठीक है, सॉलिड. इसको मैंने वाटर के साथ ऐड कर दिया, H2O, वाटर इज लिक्विड. अब मुझे क्या मिलेगा? तो इन दिस केस आई विल गेट NaCl which is dissolved in water. Therefore you would say you will get NaCl which is aqueous. Okay, so what is literal meaning of aqueous? Aqueous का literal meaning is dissolved in water, nothing more than that. ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करना. दिस इज सिंपली मीनिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमें, लेट्स सी. द सेवेंथ पॉइंट सेज दैट द कंडीशंस फॉर द रिएक्शन नीड्स टू बी स्पेसिफाइड ओवर द एरो. एरो के ऊपर आप कंडीशंस लिखोगे, क्या क्या कंडीशंस लगेंगी. हीट लगेगा, कैटलिस्ट लगेगा, प्रेशर लगेगा. यू विल स्पेसिफाई दैट थिंग ओवर द एरो. एंड लास्ट, द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. अच्छा, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एक चीज ध्यान रखना, आपने सब कुछ सही कर लिया लेकिन लास्ट पॉइंट आप भूल गए, इक्वेशन बैलेंस नहीं किया. दैट मीन्स तुमने जितनी मेहनत की है, एवरीथिंग इज इनटू वेस्ट. ओके, पूरी मेहनत वेस्ट हो गई है. क्यों? बिकॉज आपने अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं किया, मतलब
you have either destroyed mass or you have created mass, which is not possible. So, अगर आपसे question पूछा जाए कि why do you think that the equation needs to be balanced, then for that you will write down the equation needs to be balanced to obey the law of conservation of mass. Obey the law of conservation of mass. And what is the law for conservation of mass? That mass can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. So, आप mass ना ही create कर सकते हो, ना ही destroy कर सकते हो, but yes, you can convert it from one type to another type or into energy. ठीक है? तो ये 8 points है for writing down the reaction or for writing down the chemical reaction. ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं. Next one. Now, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का वेरी 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 क्रूशियल पार्ट. ओके, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. देखते हैं कुछ स्टेप्स है बच्चों, वो स्टेप्स तुम फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी, आप कहीं नहीं फंसोगे बैलेंसिंग करने में. बैलेंसिंग विल बी अ वेरी सिंपल थिंग फॉर यू. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज बैलेंस द पॉलीएटॉमिक आयंस. नाउ first thing over here which I like to add, balance the polyatomic ions, but only if they come or they occur in both reactants and products. In both reactants and products. Okay, please ध्यान देना, मैंने यहाँ पे reactants और product नहीं लिखा. It's reactant and products, दोनों जगह आने चाहिए, तो ही आप उनको सबसे पहले बैलेंस करोगे, अदरवाइज आप उनको सबसे पहले बैलेंस नहीं करोगे. ओके, फर्दर एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, सर व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस. देखते हैं, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, हम लोग वो भी देखेंगे. ठीक है, अच्छा पहले हम लोग सारे पॉइंट्स देख लेते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है? सो सेकंड पॉइंट इज बैलेंस द मेटल्स. ओके, अब जनरल क्वेश्चन ये होता है कि अगर दो मेटल्स रहेंगे तो आप किसी को भी बैलेंस कर लो, doesn't matter. Okay, so balance the metals is the second point. Third point, balance the non-metals. Fourth point is balance hydrogen and oxygen. The fifth point is no fractions allowed. Okay, कोई भी रिएक्शन बैलेंस करते वक्त फ्रैक्शंस अलाउड नहीं होते, तुम्हें होल नंबर रेशियो में रिएक्शन लिखना होता है. ओके, अब बात करते हैं व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस. सो ओवर हियर just understand polyatomic ions or आयंस जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो या एक से ज्यादा टाइप के एटम. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं OH नेगेटिव, चेक करो, इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम्स, देयरफॉर दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन. अच्छा, एक और एग्जांपल क्या है? सो वन मोर एग्जांपल इज SO4 2- सल्फेट. Another example is CO3 2-. One more is HSO4-. One more is NH4+. Okay, all of these ions, एक चीज नोटिस करना, इन सारे ions में एक चीज कॉमन है, that इन सब में एक से ज्यादा टाइप के एटम्स है. There are more than one type of atoms. Okay, OH में एक ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन. सल्फर या सल्फेट में एक सल्फर, चार ऑक्सीजन. Okay, so you have more than one type of atoms or more than one type of molecules or substances which are combining to give you different types of ions, and these ions will be referred as polyatomic ions. अच्छा, इन सब के नाम लिख देते हैं ताकि तुम थोड़े से इसको यूज टू हो जाओ. What is OH? OH stands for hydroxy. SO4 is sulfate. CO3 is carbonate. HSO4 is bisulfate और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो. NH4 is ammonium.
Okay, these are the most commonly used polyatomic ions. ठीक है, I'm not saying कि यही आएंगे, okay, but these are the most commonly used polyatomic ions. Fine. So अभी तक इस सेशन में हम लोग ने देखा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. We also discussed about what exactly is a chemical reaction. We also discussed about what points you need to remember while writing a chemical reaction. And we also discussed about the steps involved in balancing of chemical reaction. एक बार steps revise कर लेते हैं and then we'll wind up this session. ठीक है, देखो. So if you talk about balancing of chemical reactions, the very first step is you need to balance the polyatomic ions. अच्छा, but इनको balance कब करोगे? इनको balance सिर्फ तब करोगे अगर ये दोनों तरफ आते हैं, they are coming in reactant as well as product, तो ही इनको balance करोगे. Otherwise don't balance them. Then balance the metals, then balance the non-metals, then go with hydrogen and oxygen, and finally you need to remember कि कोई भी fraction allowed नहीं होता. You require whole number ratios. What are the general polyatomic ions that you will come across? OH minus, SO4 2 minus, CO3 2 minus, HSO4 minus, which is bisulfate, NH4 positive, which is ammonium. ठीक है, so I hope हम यहाँ तक आराम से कर पाएंगे सारी चीजें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बच्चों, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.